In any type of industries, buildings, malls, monuments, lighting plays a very vital role. किसी भी तरह के बिल्डिंग या इंडस्ट्री में लाइटिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिफोर लाइटिंग वी कैन नॉट वर्क 24/7. बिफोर लाइटिंग्स के आने से पहले 24/7 इंडस्ट्री में काम नहीं होता था. रात को कान बंद करना पड़ता था बिकॉज यू कैन नॉट सी एनीथिंग. देन हाउ यू डू वर्क. इन केस ऑफ क्रिकेट मैच वी नेवर हैड अ वनडे मैच बिफोर द इन्वेंशन ऑफ बल्ब्स. हमने कभी भी क्रिकेट वनडे नहीं खेला था बिकॉज रात के वक्त हम खेल नहीं सकते. वी कैन नॉट सी एनीथिंग. देन हाउ विल प्ले. So lighting plays a very important role in any type of phenomena. Before lighting, it was very difficult for us to work 24/7. Up until now, we have learned about fluorescent lamp. Then we have learned about sodium vapor lamp, which is a type of HID lamp. But now we'll learn about the third and the last topic of illumination, which is mercury vapor lamp. It's a type of very unimportant lamp which we don't use very often. हम इसे ज़्यादातर किसी भी तरह के इक्विपमेंट में यूज़ नहीं करते because it is not as efficient as fluorescent and sodium vapor lamp. But it is a type of bulb that you have an option to use in illumination. So what exactly is this mercury vapor lamp? How this mercury vapor lamp works? As always, let's learn about this. So in the last class we have discussed about the sodium vapor lamp, which is also a type of gas discharge. Sodium vapor lamp भी एक तरह का gas discharge lamp है. And in this topic is also we are having a gas discharge lamp, which is mercury vapor lamp. Mercury vapor lamp is also a type of gas discharge lamp. वो भी एक तरह का gas discharge lamp ही है. So in the last class, in the last video, we have already seen that in any gas discharge lamp there are three types of things which are common. Like we will have a gas discharge tube, एक gas discharge tube उसमें होगा. We will have a high voltage in the system. That means वो बल्ब को एक हाई वोल्टेज दिया जाएगा. And the third things are electrodes. उसमें इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड होना बहुत जरूरी है. ये तीनों चीजें किसी भी गैस डिस्चार्ज लैम्प में कॉमन रहते हैं. लाइक दैट वाइज मर्क्यूरी वेपर लैम्प ऑल्सो हैज दोस थ्री थिंग्स. वो तीनों चीजें इस पर्टिकुलर गैस डिस्चार्ज लैम्प में भी अवेलेबल है. जैसे कि यू कैन सी वी हैव अ इलेक्ट्रोड. वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स. यहाँ पे एनोड एंड कैथोड ऑलरेडी अवेलेबल है. वी हैव चोक विच विल सप्लाई द हाई वोल्टेज टू द सिस्टम. चोक है हमारे पास जो उस पर्टिकुलर बल्ब को एक हाई वोल्टेज सप्लाई करेगा. And we also have mercury and argon, which is the gases inside the lamp. So we have high voltage, we have inner gas medium, and we also have electron. In this mercury gas discharge lamp, all three things are common like we had already in the previous two gas discharge lamp. So before going to the working, let's see what exactly are the parts of mercury vapor lamp. So in the diagram you can see that there are electrodes, there are auxiliary electrodes, resistance. Diagram में जितने भी parts हैं मैंने यहाँ पे already mention किए हुए हैं. The first thing that is important in this mercury vapor lamp is the outer glass tube. You can see there is a outer glass tube. Outer glass tube के अंदर mercury vapor के सारे parts already contained है. So what exactly is the need of outer glass? Outer glass किसी भी gas discharge bulb में outer glass जो होता है उसका मेन पार्ट होता है. दैट इज द शेप. दैट आउटर ग्लास गिव्स द शेप टू द बल्ब. पहला काम होता है इट विल गिव द शेप टू द बल्ब. सेकंड वर्क विल बी टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू द इनर ट्यूब. सेकेंड आपका जो इनर ट्यूब होता है उसको मैकेनिकली स्टेबल करता है आपका आउटर ग्लास, विच ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर ट्यूब इन केस ऑफ अ मर्क्यूरी वेपर लैम्प. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाई वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्लास इनसाइड मर्क्यूरी वेपर लैम्प. एक इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब, दो अलग अलग ट्यूब यहाँ पे इसीलिए है बिकॉज इनर ट्यूब को टेम्परेचर प्रेशर, आउटर टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशन से बचाने के लिए वी हैव आउटर ग्लास. That means the outer glass will protect the inner tube with all the variations occurs in the environment like pressure, temperature variations. All those variations will not affect the inner tube because of the outer glass. Outer glass जो है वो सारे variations को inner tube के अंदर जाने से बचाते हैं. जो mercury and argon gases हैं उनके ऊपर कोई भी environment का प्रेशर और टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए हम आउटर ग्लास वहाँ पे लगाते हैं. Then the next part we have is the inner glass tube. Like outer glass tube is there to support the inner glass tube. Inner glass tube supports the gases used in mercury vapor lamp. That means इनर गैस ट्यूब के अंदर ही आपके गैसेस होंगे बिकॉज इट इज अ गैस डिस्चार्ज लैम्प. इसके अंदर गैस होना बहुत जरूरी है जिसपे हम इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाएंगे. सो इन दिस मर्क्यूरी वेपर लैम्प ऑब्वियसली सबसे पहला गैस जो होगा वो होगा मर्क्यूरी. मर्क्यूरी विल बी द फर्स्ट मटेरियल विल बी देयर इनसाइड द इनर ट्यूब. नाउ द सेकंड गैस विल बी द आर्गन. आर्गन जो होगा उस इनर ट्यूब पे सेकंड मटेरियल होगा जो कि अवेलेबल होगा इनसाइड द इनर ट्यूब. द इनर ट्यूब ऑल्सो कंटेन्स द टू इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड भी वहाँ पे होते हैं. उन दोनों इलेक्ट्रोड के साथ वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड जो कि इस लैम्प पे एक न्यू थिंग है,
कि एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड सप्लाई होता है विथ द प्रीवियस टू मेन इलेक्ट्रोड। मेन इलेक्ट्रोड 1 और 2 तो आपके होंगे ही, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो वहाँ पे होंगे, बट उन दोनों इलेक्ट्रोड के साथ देयर विल ऑल्सो बी अ ऑक्सिलरी और यू कैन से स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड हियर with the mercury and the argon। inner tube के अंदर इतने ही parts होते हैं, we only have this much part inside the inner tube। okay, now the third thing we have is the main electrode। so likewise we have discussed that the inner tube has 3 types of electrodes। one is, you can see there are numbers here, 1 number is this electrode, 2 number is this electrode, and the third is the new red color mark जिसको मैंने किया हुआ, third is the auxiliary electrode। so the 1 number and the 2 number electrode are the main electrode। that means वो electrode है जिसमें आप positive और negative supply देते हैं। you can see that positive supply is going through the choke, through the first electrode। the negative supply in case of AC positive negative तो change होते हैं, तो you can take any one। so this particular negative supply is going through the tube to the second electrode। so these are the 2 electrode present inside the mercury vapor lamp, number 1 and number 2। this is called the main electrode। now the fourth part comes as auxiliary electrode। auxiliary electrode किसे कहा जाता है? this is third number electrode जो कि 1 number electrode से कुछ ही distance पे रहता है। it's a very small distance from the 1 number electrode। so 1 number और third number यानी कि main electrode 1 and auxiliary will be a very small in distance with each other। दोनों के बीच में बहुत ही कम distance होगा। so why this auxiliary electrode is here, वो हम इसके वर्किंग पे देखेंगे। so we also have auxiliary electrode in case of mercury vapor lamp। auxiliary electrode को सप्लाई से आप देख सकते हैं कि नेगेटिव वाले इस इलेक्ट्रोड से जो सप्लाई जा रहा है, उसी इलेक्ट्रोड से, उसी सप्लाई से हमारा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी कनेक्टेड है, लेकिन इन दोनों पॉइंट में एक करंट डिफरेंस जरूर होगा। करंट डिफरेंस क्यों होगा? करंट डिफरेंस इसीलिए होगा बिकॉज ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेकंड नंबर इलेक्ट्रॉन। दिस नेगेटिव पॉइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन सेकंड नंबर इलेक्ट्रॉन, बट उसी पॉइंट से जो हम और एक पॉइंट यहाँ से जंक्शन से ले रहे हैं, दैट पॉइंट इज गोइंग टू द ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, बट देयर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इन बिटवीन। एक रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे उस पॉइंट पे अवेलेबल है, जिस रेजिस्टेंस को हम जिस रेजिस्टेंस को हम स्टार्टिंग रेजिस्टर कहते हैं। सो व्हाई एग्जैक्टली इज देयर, विल कंप्लीट दैट इन वर्किंग। वी ऑल्सो हैव अ चोक। अब तक हमने जितने भी बल्ब देखे हैं, गैस डिस्चार्ज हो या विदाउट गैस डिस्चार्ज लैंप हो या इनकैंडेशन बल्ब हो, सबसे जरूरी पार्ट वहाँ पे चोक। देयर इज अ चोक इनसाइड द सिस्टम। व्हाई वी हैव अ चोक, दैट उस चोक का क्या यूजेस है, दैट विल सी इन वर्किंग। नाउ in 6 physical parts के अलावा there are 3 parts which is not visible to us, that is mercury, argon and vacuum। mercury और argon आपके inner tube में होंगे। those two gases will be there in the inner tube of the gas discharge lamp, and vacuum जो होगा वो vacuum आपके इस outer glass और inner glass के अंदर यानी कि इस पार्ट पे फ्लो कर रहा होगा। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई एग्जैक्टली वैक्यूम इज हियर। वैक्यूम यहाँ पे होने का रीज़न क्या है? वैक्यूम यहाँ पे होने का रीज़न ये है, आउटर ग्लास और इनर ग्लास के बीच में देयर इज अ गैप विच इज फिल्ड बाय द वैक्यूम विच प्रोटेक्ट्स द इनर ट्यूब फ्रॉम द आउटर टेम्परेचर्स वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन ऑफ एनवायरनमेंट। यानी इन्वायरमेंट पे जो टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन होंगे वो आउटर ग्लास बाहर ही रखेगा विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम के हेल्प से उसको जितने भी सारे वेरिएशन है टेम्परेचर और प्रेशर के, वो सारे प्रेशर टेम्परेचर वेरिएशन वो बाहर की तरफ ही रहेंगे, अंदर की तरफ फ्लो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ वैक्यूम। सो इनर ट्यूब विल बी टोटली सेफ। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इनर ट्यूब वी हैव वैक्यूम इनसाइड द पर्टिकुलर लैम्प। सो दिस इज व्हाट अबाउट द पार्ट्स ऑफ द मर्क्यूरी वेपर लैम्प। Now let's move to the working. How exactly the mercury vapor lamp works. So before going to the working part, let's ask ourselves about why exactly mercury is used here. Mercury यहाँ पे use होने का reason क्या है? उसका रीज़न यही है कि कभी whenever we excite the mercury atom, mercury atom को जब भी हम excite करते हैं, the mercury atom radiates so many types of wave। वो बहुत तरह के waves को radiate करते हैं। जैसे मर्क्यूरी वेपर को 2 तरह से एक्साइट किया जाता है। द मर्क्यूरी वेपर इज बीइंग एक्साइटेड इन 2 डिफरेंट पार्ट्स, हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैंप्स एंड लो प्रेशर मर्क्यूरी लैंप्स। लो प्रेशर मर्क्यूरी लैंप में आपको जो रेडिएशंस मिलते हैं, हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैंप में वो रेडिएशन नहीं मिलते। Those two produces different type of radiation. Some of them produce ultraviolet radiation जो हमको दिखेंगे नहीं, and some of them produce a visible ray radiation which is in the color of violet and green, और blue color भी हो सकता है। So mercury produces different types of radiations in different levels of excitation। ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है कि mercury जो होता है उसको जब हम excite करते हैं, it produces different type of radiation at different levels।
यानी जितना आप उसको एक्साइट करते जाएंगे उतना उसमें डिफरेंट कलर आते जाएगा, डिफरेंट रेज निकलते हुए जाएंगे, कभी अल्ट्रावायलेट निकलेगा, कभी विजिबल निकलेगा, कभी ग्रीन रे, कभी रेड रे। तो उसी के लिए हम यहाँ पे मर्क्यूरी यूज कर रहे हैं इनसाइड दिस गैस डिस्चार्ज लैम्प इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजिबल रेज। सो नाउ लेट्स मूव टू द वर्किंग। फर्स्ट थिंग इन एनी गैस डिस्चार्ज लैम्प इज द वोल्टेज। सो यू कैन सी हियर द वोल्टेज इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द लैम्प। वोल्टेज जो है चोक के थ्रू होते हुए इस पर्टिकुलर लैम्प को कनेक्ट कर दिया गया। सो व्हाट हैपेंस, 230 वोल्ट सप्लाई विल गो टू द लैम्प थ्रू द चोक। सबसे पहले क्या होगा, 230 वोल्ट जो सप्लाई हम दे रहे हैं वो चोक के थ्रू होते हुए लैम्प में जाएगा। उससे क्या होगा, चोक विल नाउ प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज इंपल्स। हम किसी भी तरह के गैस डिस्चार्ज लैम्प में हमने देखा है कि वहाँ पे कोई ऐसा एक एलिमेंट जरूर होगा जो उस बल्ब को एक वोल्टेज इंपल्स देगा। वोल्टेज इंपल्स का मतलब कम टाइम में ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज करना। सो वो काम हमारा यहाँ पे चोक करेगा। बट दोज टू वायर्स, फर्स्ट वायर इज कनेक्टेड टू द वन, this first blue wire is connected to the first electrode, number 1 electrode, and this red wire is going to the second electrode, that is also a main electrode, and it is also connected to the starting electrode, that is third number electrode। याद रखें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड हैं। पहले इलेक्ट्रोड जो है वो इस ब्लू वायर से कनेक्टेड है, सेकेंड वाला इलेक्ट्रोड जो है वो इस रेड वायर से कनेक्टेड है, और उसी इलेक्ट्रोड के साथ थर्ड वायर भी कनेक्ट हुआ है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस दिया गया है। सो व्हाट विल हैपन हियर, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के बीच में एक मर्क्यूरी आर्गन का गैप बना हुआ है। एक ऐसा गैस है जिसके बीच में आयोनाइजेशन होना चाहिए था, बट एज द गैप इज वेरी ह्यूज, इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट या इलेक्ट्रोड पे नहीं जा पाएंगे। तो क्या होगा, यू कैन सी दैट सेकेंड नंबर पॉइंट पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा, 1 और 3 के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस दोनों के बीच का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में अभी भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है 1 और 3 के बीच में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, यू कैन सी दैट द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3 इलेक्ट्रोड इज वेरी लेस, बहुत ही कम है। और अगर डिस्टेंस कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वो भी बहुत कम होगा। और टाइम ऑफ आयोनाइजेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इतने गैप, इतना छोटा सा गैप है वहाँ पे, द गैस इज ओनली दिस मच एंड सेकेंड केस गैस इज दिस मच। सो विच गैस विल टेक maximum amount of time or minimum amount of time to get ionized is time of ionization. So यहाँ पे you can see because of this very less gap, 1 और 3 के बीच में ionization start हो जाएगा। ionization का मतलब 1 नंबर इलेक्ट्रोड से जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 नंबर इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफर होने की कोशिश करेंगे, और उस टाइम पे मर्क्यूरी से पहले आर्गन आयोनाइज हो जाएगा। तो आर्गन आयोनाइज होने से क्या होगा, whenever a gas is ionized it produces heat, वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो 1 और 3 जैसे ही आयनाइज होंगे, आर्गन के चलते उस पर्टिकुलर इनर ट्यूब में टेम्परेचर राइज करने लगेगा। धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा, आयोनाइजेशन का रेट वैसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द आर्गन, नाउ मर्क्यूरी इज गेटिंग आयोनाइज्ड। मर्क्यूरी धीरे धीरे उस हीट और उस आयोनाइजेशन के प्रोसेस से अब वो भी आयोनाइजेशन या एक्साइट होना स्टार्ट हो चुका है। सो धीरे धीरे आपका मर्क्यूरी जो है वो भी आयोनाइजेशन होना स्टार्ट होगा, और वो एक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन देना स्टार्ट कर देगा। इवेंचुअली योर मर्क्यूरी विल स्टार्ट आयोनाइजिंग and the resistance inside this particular inner tube will decreases, क्योंकि हमको पता है कि this type of discharge tube are negative temperature coefficient tube, जिसके अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, घटता चला जाएगा। सो अब इस ट्यूब में जो 1 और 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस में जितना रेजिस्टेंस था अब वो डिक्रीज कर रहा है। अब तक हमारा कंडक्शन किससे हो रहा था, 1 और 3 के बीच में कंडक्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही आर्गन के चलते मर्क्यूरी हीट करने लगा, मर्क्यूरी लाइट रेडिएट करने लगा, अब मर्क्यूरी का जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द मर्क्यूरी इज डिक्रीजिंग, सो द करंट विल टेक अ लो रेजिस्टेंस पाथ। तो ये जो रेजिस्टेंस है अब वो बढ़ चुका है, इट इज नाउ मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 2 through the mercury and argon, and the mercury and argon itself produces a radiation which is a bluish pale in color। वो एक ऐसा radiation of light radiate करेंगे जो bluish pale color का होता है, यानी कुछ ब्लू कलर का रहेगा वो। So now the mercury lamp is on, mercury lamp ऑन हो चुका है, लेकिन एज हमने देखा कि टेम्परेचर के चलते धीरे धीरे इसका रेजिस्टेंस इनर ट्यूब का डिक्रीज कर रहा है। सो करंट क्या होगा, इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। सो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि द रेजिस्टेंस विल बिकम वेरी लेस, 0.001 ओम, then at that particular case the 230 volt will give a very high amount of current. So the mercury vapor lamp can experience heavy amount of arc inside the system. So in order to protect that mercury lamp, there is a
particular thing connected in here जो और भी सारे गैस डिस्चार्ज लैम्प में कनेक्टेड था। इस सभी गैस डिस्चार्ज लैम्प में एक करंट लिमिटर वहाँ पे दिया गया था, क्योंकि जब भी डिस्चार्ज लैम्प के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है करंट इंक्रीज करने लगेगा। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग देयर इज अ करंट लिमिटर इज प्रेजेंस इनसाइड द सिस्टम ऑफ gas discharge lamp that I have already told in the previous 3 videos. If you didn't watch the previous 3 videos of illumination, go there in the I link button. You can find the previous links of the videos. Go there and watch. There is a current limiter used inside this particular lamps. A current limiter जो इस लैम्प में यूज होता है. So which is that? Which particular thing is known as the current limiter in any gas discharge lamp? राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये जो गैस डिस्चार्ज लैम्प है इसमें करंट लिमिटर कौन है। जो ऑलरेडी इल्यूमिनेशन के लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, go there and write the answer in the comment section below that which is the current limiter in this particular system. For those who are new to this particular lecture on this channel, who are seeing this lamp for the first time or the gas discharge lamp for the first time, the current limiter is the choke. जो current limiter यहाँ पे है वो choke है। choke एक current limiter as well as a voltage impulse element की तरह भी यूज होता है। सो हमने क्या किया, हमने सप्लाई दिया 1 और 3 इलेक्ट्रोड पे कंडक्शन स्टार्ट हुआ, उस कंडक्शन से आर्गन आयनाइज हुआ, आर्गन आयनाइज होने से मर्क्यूरी हीटअप हुआ, मर्क्यूरी हीटअप होने से रेडिएशन निकला। वो रेडिएशन धीरे धीरे इतना टेम्परेचर पे आ गया कि इनर ट्यूब में हमारा रेजिस्टेंस धीरे धीरे घटने लगा, जिससे कि 1 और 3 को छोड़कर 1 और 2 में कंडक्शन स्टार्ट हो गया और हमारा मर्क्यूरी फुल फेज, मर्क्यूरी वेपर लैम्प फुल फेज पे चलने लगा है। दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ मर्क्यूरी वेपर लैम्प। अब आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पे। सो मर्क्यूरी वेपर लैम्प जो कि कुछ इस तरह का दिखता है और किसी किसी जगह में आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं। These are all having an advantage that it is highly efficient. Luminous efficiency इनका बहुत हाई है, यानी कि it can produce up to 40 lumens per watt। 1 watt में ये 40 lumens तक का प्रोड्यूस कर सकते हैं, नियरली फ्लूरोसेंट लैम्प के बराबर है। सो दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ मर्क्यूरी वेपर लैम्प इज। एडवांटेज इसका ये है कि दिस पर्टिकुलर लैम्प इज नॉट, वी कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर लैम्प इन केस ऑफ ए इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम ये लैम्प यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ ब्लूइश पेल कलर। सेम टाइप ऑफ डिसएडवांटेज हमारे सोडियम वेपर लैम्प में भी था। सोडियम वेपर लैम्प प्रोड्यूसेस अ मोनोक्रोमैटिक ऑरेंज और येलो कलर। Because of that, every object near it will become orange. Like that, mercury vapor lamp में भी आसपास के जितने भी एलिमेंट हैं वो ब्लू कलर के दिखने लगेंगे। So that creates a virtual image of that particular. We will not get a real image of that particular object. So because of that, this mercury vapor lamps cannot be used in case of industry. ये सिर्फ उसी जगह पे यूज होते हैं जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के कलर से कोई लेना देना नहीं है। You're not concerned about the color of the object. Like street lights and all those things, you can use a mercury vapor lamp. And second disadvantage इसका ये है, जो और किसी भी तरह के बल्ब में नहीं है, कि इसको आप हमेशा वर्टिकल यूज कर सकते हैं। You can only use this bulb in the vertical orientation. Why? Because अगर मैं उसे horizontal orientation में यूज करूँ, there will be a very high arc inside the inner tube. Inner tube के अंदर बहुत high arc produce होगा जो आपके इस बल्ब को फ्यूज कर सकता है। So that is again a very weird type of disadvantage that उस लैम्प को आप उल्टा नहीं यूज कर सकते, उसको हमेशा सीधा यूज करना पड़ेगा। So that is the third disadvantage of this particular lamp. This particular lamp takes around 5 to 6 minutes to get on full illuminated state, यानी उसे अपने पूरे फुल फेज आउटपुट को लाने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि वो लैम्प धीरे धीरे हीट होता है। बिकॉज दैट लैम्प टेक्स 5 to 6 minutes to get heated fully and to get the illumination that we require in the final full state. This produces around 600 to 700 degrees Celsius, around 600 to 700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इसके अंदर, जो कि वी कैन से इज़ अ वेरी हॉट मैकेनिज्म यूज्ड बाय एनी टाइप ऑफ लैम्प। किसी भी लैम्प में इतना टेम्परेचर होना, इट्स नॉट अ वेरी एफिशिएंट लैम्प, बिकॉज अगर उस लैम्प को आप इंडस्ट्री में लगाते हैं या सपोज अपने घर में लगाते हैं, सो इफ़ इट प्रोड्यूस 600 to 700 डिग्री सेल्सियस, उसके एनवायरनमेंट में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर वर्किंग फिनोमेना। So that is why this lamp is not being used nowadays. इस लैम्प को हम आजकल बहुत कम ही जगह यूज़ करते हैं। We have fluorescent lamp, we have sodium vapor lamp, we have LEDs which are way more efficient than these particular lamps. So this is all about the mercury vapor lamp and all about illumination. Illumination chapter 4, illumination lecture 5 will be the last lecture of this particular segment, जिसमें हमने already सारे illuminations के part को cover कर दिया है। In case if you want the notes, in case if you want the model question and the
previous year questions, the syllabus related to this topic or related to the subject, you can download the Zadlan app, in which you will have all the types of notes which are already designed by the experts for you. So go there, download the app. If you have any doubt regarding the elimination part, contact me through the Zadlan app also. There is a doubt section there. You can write us the doubt and an industrial expert will definitely contact you to solve your doubts. After this elimination, I will be going to the next chapter of utilization, that is electrical traction and electrical drive. So if you want the latest update, do subscribe to this channel so that next chapter will be available to you. Until then, I will see you in the next lecture.